अब थोड़ा ध्यान करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर लंबा अच्छा नहीं लगता। जो कल बताया था, तो आज एक ही बहुत है, एक था इसका। तो ध्यान, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान यदि आपका लग गया और मन आपका शांत रहा तो माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को। तो आप अपने माइंड से ही कोई भी फंक्शन को ठीक कर सकते हो। यदि माइंड आपका ठीक है तो आपका सारी बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगी। तो बैठ जाइए। उसकी थ्योरी मैंने कल बता दी थी, आज सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे। आज थ्योरी नहीं बताऊंगा, वो कल मैं बता चुका हूँ, आप सुन लेना वीडियो पर। सबसे पहले बैठ करके हम 11-11 बार के 3 राउंड में ओम का उच्चारण करेंगे। हम ध्वनि मिलाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, सब मिला कर करेंगे तो गहरा लंबा श्वास लेके उसके बाद ओम का उच्चारण। Feel the vibration of Om chanting on your body and mind. Focus नाक के अग्र भाग पे लगाएं। Focus only on your breath, front of your nostril.
Observe how are you inhaling and how are you exhaling. Just observe the breath. Inhale very, very slowly and exhale very, very slowly. Breath should be very slow. आपकी आँखों के सामने ओम का प्रतिबिंब बनना चाहिए, जिसमें उसकी लालिमा आपके माइंड तक पहुँचे और आपका जो ध्यान है वो नाक के अग्रभाग पर रहेगा। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे 11 बार, 3 बार करेंगे और तीसरी बार आप देखेंगे जब 3 बार हो जाएगा तो कितना मन शांत हो जाएगा। बीच में फिर इस तरह से लंबा विश्राम गहरा करेंगे। श्वास लेके एक साथ ध्वनि मिलाएंगे। लंबा और गहरा श्वास लेंगे और एक साथ मिलकर के बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे राजू जी गर्भ बता रहे हैं। लंबा श्वास लीजिए। ओ
Focus front of your nostril on your breath. Inhale very, very slowly and feel the vibration on your breath in your nostril. When you inhale and when you exhale, then feel the sensation of your breath in your nostril. Then concentrate in between your nostrils. Breath should be very slow when you inhale and when you exhale. आपके सांसों की आवाज़ आपके कानों को नहीं सुनाई देनी चाहिए। After taking some rest, when you feel comfortable, then again start third round of Om chanting. Take a deep breath and then start Om chanting.
focus front of your nostril on your breath. Inhale very, very, very slowly. Fill up completely lungs. Travel with your breath up to the lungs by your mental power, and come with your breath from the lungs. Breath should be very slow, no sound generates in your nostril, and focus completely only on your breath. जब आप श्वास लेते हैं तो आपके नाक के अगर भाग ठंडापन महसूस होना चाहिए। आप कूल एयर अंदर लेके जा रहे हैं, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो ऐसा महसूस हो आप गर्म हवा बाहर निकाल रहे हैं। Now focus on your heart, on left side of your chest, and feel the heartbeat. If you unable to feel the heartbeat, then hold your breath at once. When you hold your breath, then heartbeat clearly feels in the left side, your chest. Focus only on your heartbeat and slow down your heartbeat. Now count your heartbeat up to 21 times. Focus completely your heartbeat, feel the heartbeat and count up to 21 times. Start now. Now focus on your heart completely. Observe the function of your heart. By your imagination power, enter inside your heart. By your imagination power, enter in your heart and observe the function of your heart. Blood coming inside the heart, blood supply the blood to the lungs. From there again oxygen takes the blood and again come in heart, and heart supply the whole oxygen and blood to the body. So observe this process and relax your heart, strengthen your heart by your imagination power. Now you are clearly feeling the heartbeat. You are feeling your heart is going stronger. Now again focus front of your nostril. Observe your breath. Go inside with your breath up to the lungs. Come outside from the lungs with your breath and focus only on your breath.
Now hold your breath and count up to the one. Then inhale. When you go inside your breath completely, hold there and count one. जैसे श्वास अंदर जाए रोको, एक गिनो, फिर बाहर निकालो धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे, फिर बाहर रोक करके एक गिनो। इससे आपका कंसंट्रेशन और डीप होता चला जाएगा। फिर काउंटिंग को इंक्रीज करो अप टू योर कैपेसिटी। 2 काउंटिंग करो। होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट अप टू 2 बोथ साइड्स। Increase your count. 3 outside, 3 inside. One more. Now count 4. Hold your breath and count up to 4 inside and 4 outside. Increase one more up to 5 inside and 5 outside. One more up to 6. When you inhale, then hold your breath, count up to 6. Then exhale, hold outside, count up to 6. Now decrease your counting up to 5. Now number 1 decrease, count up to 4. Now up to 3. Up to 2. Up to 1. Now relax. Now focus in between your eyebrow. This is called Ajna Chakra in yogic language. Imagination here, candlelight. Just imagination first. After some time, clearly you see the very brighting light here. But first you imagine we are candlelight and focus on candlelight. If your mind is not focused on candlelight, then hold your breath at once and focus only on candlelight. जैसे ही ध्यान हटे कैंडल लाइट से, तो सांस को वहीं कहीं रोक लें, तुरंत कैंडल लाइट पर फोकस हो जाएगा और सांस थोड़ी देर के बाद अपने आप चलने लगेगा। डोंट वरी अबाउट योर ब्रेथ, ब्रेथ विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली। अब उस कैंडल लाइट को थोड़ा छोटा करें, थोड़ा सा और छोटा करें।
यदि कैंडल लाइट से ध्यान हटता है तो श्वास को एकदम रोक लें। श्वास उठते ही फोकस हो जाएगा कैंडल लाइट पर और श्वास अपने आप चलने लगेगा, उसकी चिंता न करें। और कैंडल लाइट को बिल्कुल छोटा करें, एक बिंदु सा दिखाई देगा आपको गहराई में मस्तिष्क के अंदर। उसी पर फोकस करें। यदि विचार मन में आता है तो अपने ब्रेथ को होल्ड कर ले, सांस को रोक ले एकदम। अब बिल्कुल शांत बैठ जाए, श्वास रोक करके बिल्कुल निर्विचार आप हो गए हैं। और ध्यान को एक साथ लगाए। यदि विचार कोई मन में आता है तो श्वास वहीं रोक लें। जैसे ही श्वास रोकेंगे तो विचार एकदम खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट योर ब्रेथ, ब्रेथ विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। Now relax. Now relax. Slowly, slowly. Rub your palm for 5 times. And place your palm on your eyes. Rub slowly, slowly your palm on your eyes. And cover your eyes with your palm. And open in the darkness of palm on your eyes. Now remove your palm and take the light from the outside. कैसा फील हुआ? आज तो सूरज दिखा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब शुद्ध बिंदु। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अब जो गाइडेड मेडिटेशन है उससे ये ध्यान की तरफ में ले जा रहा था आपको। और यहाँ पर आप ध्यान पहले तो इमेजिनेशन करेंगे, कैंडल लाइट की, ओम की, किसी भी इमेजिनेशन आप करें। उसके बाद उसको बहुत थोड़ा सा छोटा सा बिंदु बना लें, उस बिंदु पर फोकस करें। विचार कोई आता है तुरंत श्वास को रोक लें। होल्ड करने से हो जाता है। हाँ, होल्ड करते ही आपके विचार एकदम खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। मतलब ब्रेथ का और माइंड का बहुत ही रिलेशन है गहरा। जैसे ही ब्रेथ रोकोगे, आप श्वास को कंट्रोल करोगे तो माइंड फोकस हो जाएगा। सर एक लास्ट एक्सरसाइज, लाफिंग एक्सरसाइज, वही मेडिटेशन में मतलब अलग चीज़ है। तो ये ध्यान का मतलब जब मन बिल्कुल रुक जाएगा तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। गाइडेड मेडिटेशन, ये धारणा कहते हैं। कल मैंने बताया था गाइडेड मेडिटेशन को धारणा कहते हैं वैदिक योगिक भाषा में। देश बंध चित्त से धारणा। जब हम किसी एक देश का मतलब स्थान, किसी एक स्थान पर हम अपने चित्त को टिकाते हैं तो वो धारणा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर फोकस करो, नोस्ट्रिल के सामने, हार्ट पर फोकस करो, अपने नोस्ट्रिल के मतलब ब्रेथ पर फोकस करो, तो ये धारणा है। एक स्थान पर हम रोक रहे हैं और फिर हम वो धारणा कंटिन्यूस बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, वहाँ पर एकदम कंटिन्यूटी बनी रहे, हले ना मन वहाँ से, वो ध्यान हो जाएगा। और तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, और वही समाधि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो धारणा तक तो हम करा देते हैं। जो गाइड होता है बैठ करके, टीचर होता है, वो गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा धारणा तक तो आपको ले जाएगा। धारणा से आगे ध्यान आपको ऑटोमेटिक घटित होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए भगवान कृष्ण से जब ये पूछा अर्जुन ने कि चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़ तस्या अहम निग्रह मन्ने वायुरिव दुष्करम। आप मुझे कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ और ये मन तो इतना चंचल है जैसे हवा है, हवा को कोई रोक सकता है क्या? तो मैं नहीं रोक सकता इसको। तो भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? असंशय महाबाहो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है, ये बड़ा दुर्निग्रह है, बहुत मुश्किल से बस में आता है मन, लेकिन अभ्यास है न तो कौनते है, अभ्यास से। और वैराग्य ने से गृह्यते, और वैराग्य से ग्रहण कर सकते हैं इसको। अभ्यास और वैराग्य, पतंजलि ने यही सूत्र दिया है योग दर्शन में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से मन को रोक सकते हैं।
अभ्यास तो आप जानते हैं, प्रैक्टिस, जैसे रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। वैराग्य क्या चीज़ है? वैराग्य की परिभाषा बहुत सिंपल है। घर छोड़ के चले जाना, लाल कपड़े ले लेना, अपने कर्तव्यों को छोड़ जाना, ये वैराग्य नहीं है। दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो विषय हमने देखे हैं, जो विषय हमने सुने हैं, जब उनसे हमारा मन हट जाता है, हमें वितृष्णा हो जाती है। दृष्ट अनुसर्विक, देखे गए और सुने गए, विषय वितृष्णा से, जब उन विषयों से वितृष्णा हो जाती है, ऊब जाते हैं हम, कहते वो वैराग्य है। जैसे बचपन में हम कंचे खेलते थे, आज भी खेलते हो क्या? क्योंकि हमारा वितृष्णा हो गई हमसे। बचपन में जो चीज़ करते थे हम, वो लगते बच्चों खेले क्या करेंगे, बच्चे क्यों झगड़ रहे इस बात पर, छोटी सी बात पर, खेल पर, तो हमारा वैराग्य हो गया। तो ऐसे ही संसार की जिन जिन चीज़ों से हम देख लेंगे उसकी वास्तविकता, वहाँ से मट जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 17-18 साल के, जब उनका आपस में लव होता है और माँ बाप नहीं मानते तो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिनके माँ बाप मान गए, उनकी शादी कर दी, 1 साल में ही तलाक हो लेते हैं उनके, या लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि शारीरिक आकर्षण खत्म हो गया, वितृष्णा हो गई एक दूसरे से। तो ये हर एक विषय को आप जब देखेंगे तो वहाँ से आपका मन उठता चला जाएगा और आपको वैराग्य हो जाएगा। ये वैराग्य की परिभाषा है। तो 2 ही है कि रोज अभ्यास करो और सांसारिक विषयों की वास्तविकता को समझो, तो आपका ध्यान रखने लगेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे को अपना पहचानना, अपने आप को पहचानना है। जब अपने आप को, जिस दिन आपके दर्शन हो जाएंगे, आप इतने आनंद में रहोगे, इतने आनंद में रहोगे, बस पूछो ही ना, मस्ती में रहोगे, अपनी मस्ती में। जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाएगी, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप दुखी रहते रहोगे। संसार के लोग इस तरह दुखी है, कभी सोचते हैं पैसा कमाएंगे सुख मिलेगा, गाड़ी खरीदेंगे सुख मिलेगा, मकान बनाएंगे सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी बनाएंगे, सब कुछ हो गया और अब नींद नहीं आ रही है, अब ब्लड प्रेशर हो रहा है, अब डिप्रेशन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हम 1 घंटा इसमें नहीं लगाते। इसलिए सांसारिक काम करते करते 1 घंटा आध्यात्मिकता में भी लगाना चाहिए, योग में लगाना चाहिए। हमारे सारे पूर्वज जो थे वो संसार का सारा काम करते थे, बहुत बड़ी साइंस यहाँ विकसित थी, लेकिन बैठ करके वो ध्यान भी लगाते थे। ओम शांति। हाँ जी, अब आप कहते हैं हंसने की बात, ये